اگر آپ کو عمران خان صاحب سے اتنا ہی ڈر ہے، اتنا ہی خوف ہے کہ آپ کو آج آئین تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، آج آپ آئین تبدیل کر رہے ہیں اس لیڈر کے خلاف، تو کیوں نہ آپ چلے جائیں جیل، ان سے آپ بات کریں۔ میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے وہ آپ سے بات چیت ضرور کرے گا۔ آپ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، عمران خان صاحب کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات ہو تو وہ صرف اور صرف آپ کو پاکستان کے لیے کرے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں بار بار ہمارے نوجوان جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں، اگر پاکستانی قوم اور نوجوان چاہے تو ہم ان دیواروں کو گرا دیں، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز روکتی ہے تو وہ آئین قانون ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جو اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اور بار بار ہمیں ادھر سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایوان جو ہے یہ سپریم ہے، ایوان کے اندر آ کے آپ گفتگو کریں، آپ قانون سازی میں ساتھ دیں، لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس بلڈنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، جب آپ کو عوام الیکٹ کر کے بیٹھتی ہے، جب آپ فارم 47 کے ذریعے دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس ایوان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اس ایوان کی عزت کرتا ہے۔ ایوان کی عزت وقار تب بلند ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو، لیکن نہ آپ کے ساتھ عوام ہے، نہ آپ کے ساتھ طاقت ہے، اور بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ 2/3 میجارٹی ہے، تو ایسا کریں کہ کبھی کسی پنجاب کی کسی قصبے میں یا کسی شہر میں اپنے اس وزیر اعظم کو یا اپنے جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کبھی آپ لے کے تو چلے ادھر، کبھی آپ بازار میں لے کے تو چلے کہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کن کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تمغیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے بعد اس ملک کو ایک بہت بڑا عظیم لیڈر جس کا نام عمران خان ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اداروں نے، حکومت نے مل کے اس عظیم لیڈر کو جیل میں بند کر دیا۔ 2.5-3 سالوں سے وہ جس دلیری، جس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کتنا مضبوط لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب جتنا مضبوط لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور اس بات کا ثبوت آج یہ ہے کہ اس ایوان میں کاروائی یا جو قانون سازی ہے صرف اور صرف ایک لیڈر عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے آپ سب یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے۔ عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کی دل و دھڑکن میں رہنے والا لیڈر ہے، واحد لیڈر ہے اس وقت جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے، جو آج خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ آپ ان چند کاغذ کے ٹکڑوں سے عمران خان صاحب کو لوگوں کے دلوں اور دماغ سے نہیں نکال سکتے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر آپ کو عمران خان صاحب سے اتنا ہی ڈر ہے، اتنا ہی خوف ہے کہ آپ کو آج آئین تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، آج آپ آئین تبدیل کر رہے ہیں اس لیڈر کے خلاف، تو کیوں نہ آپ چلے جائیں جیل، ان سے آپ بات کریں۔ میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے وہ آپ سے بات چیت ضرور کرے گا۔ آپ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، عمران خان صاحب کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات ہو تو وہ صرف اور صرف آپ کو پاکستان کے لیے کرے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں بار بار ہمارے نوجوان جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں، اگر پاکستانی قوم اور نوجوان چاہے تو ہم ان دیواروں کو گرا دیں، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز روکتی ہے تو وہ آئین قانون ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ
तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रही है, जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। और बार बार हमें इधर से ये बार बार कहते हैं कि जी ईवान जो है ये सुप्रीम है, ईवान के अंदर आके आप गुफ्तगू करें, आप कानून साजी में साथ दे। लेकिन जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है। इसमें बैठे जो लोग होते हैं, जब वो वोट की ताकत से आते हैं, जब आपको अवाम इलेक्ट करके बैठती है, जब आप फॉर्म 47 के जरिए दूसरे के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इधर आके बैठते हैं, तो इस ईवान की ना कोई हैसियत है, ना कोई इस ईवान की इज्जत करता है। ईवान की इज्जत वकार तब बुलंद होती है जब अवामी ताकत आपके साथ हो, लेकिन ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ ताकत है। और बार बार हमें कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे हमारे साथ 2/3 मेजॉरिटी है, तो ऐसा करें कि कभी किसी पंजाब की किसी कस्बे में या किसी शहर में अपने इस वजीर आजम को या अपने जो आपकी लीडरशिप है, इनको कभी आप लेके तो चले उधर, कभी आप बाजार में लेके तो चले कि इनको पता चले कि अवाम किनके साथ है। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, कल राजा परवेज अशरफ साहब ने हमारी तरफ देख के कहा कि जी ये सारे कंप्रोमाइज है। डिप्टी स्पीकर साहब, कंप्रोमाइज वो है जिन्होंने बीबी शहीद की शहादत कंप्रोमाइज की, कंप्रोमाइज वो है जिसने भुट्टो के नजरिए को कंप्रोमाइज किया, कंप्रोमाइज वो है कि जिन लोगों ने भुट्टो साहब को, भुट्टो शहीद को तख्तेदार पे लटकाया, आज उनके साथ आप बैठे हुए हैं, इसको कंप्रोमाइज कहते हैं। इमरान खान साहब के जितने भी यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली हैं, जितने भी उनके मेंबरान हैं, ये चट्टान की तरह अपने लीडर के लिए खड़े हैं। लीडर जब एक इशारा करेगा, जिस तरह पहले आए हर प्रोटेस्ट में आए और आप लोगों को गोलियों का सहारा लेना पड़ा, आपने पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई। और जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप डर गए थे। और आपकी डर और खौफ का ये आलम है कि कभी आप इमरान खान के खिलाफ अदालतें मैनेज कर रहे हैं, कभी आईन में आप चीजें तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर इतना ही खौफ है इमरान खान साहब से, इतने ही डरे हुए हैं, इतने ही सहमे हुए हैं कि आपको इम्यूनिटी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी चाहिए, गवर्नर जो है उसको इम्यूनिटी चाहिए, जितने हमारे इस वक्त फोर्सेस के सरबराहान हैं उनको इम्यूनिटी चाहिए। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप बहादुर हैं तो आपको क्यों इम्यूनिटी चाहिए? जो दलेर लोग होते हैं वो तो मुकाबला करते हैं हालात का। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे हमारी एक बहुत बड़ी तारीख है 75 साल। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने आईन को बुलडोज किया, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने इस ईवान को बार बार तोड़ा, पाकिस्तान के आईन को तोड़ा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि हम किसी को। शुक्रिया। 7 मिनट हो गए, आपको 5 मिनट की वाइंड अप करें। आखिरी सेंटेंस इस ईवान के तवसत से अपने नौजवानों को जो कि सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं उनको एक पैगाम भी देना चाहता हूं, और बिलखसूस अपने पाकिस्तानी कौम को कि मेरे पाकिस्तानियों और बिलखसूस नौजवानों, इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने का इंतजार किया। इमरान खान साहब ने 28 साल पॉलिटिकल जदोजहद की, उसने देखा, और इमरान खान साहब ने हमारी तरफ वो नजरें रखी जो एक बाप अपने औलाद की तरफ नजर रखता है कि मेरी औलाद जो है ये बड़ी होगी, ये सहारा बनेगी। तो इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने के लिए 28 साल इंतजार की। वो आज भी फ्रंट से लड़ रहा है, वो आज भी मेरे और आपके हिस्से के जख्मकार है अपने सीने और अपने छाती के ऊपर। आज भी वो बार बार मुड़ के देख रहा है। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, कप्तान के खिलाड़ी शाहिद खट्टक ने आज असम्बली में ऐसी तकरीर की कि हुकूमत के चारों तबके रोशन कर दिए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा कि तुम लोग ये जो फेक 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हो, अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि 2/3 मेजॉरिटी तुमने हासिल की है, तो तुम एक दफ़ा पंजाब के सड़कों के ऊपर निकलो, पंजाब की आवाम के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनका लीडर कौन है, फिर तुम्हें पता चलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने नाज़रीन इकराम मज़ीद कहा कि आवाम हमें ये कहती है, नौजवान हमें ये कहते हैं कि क्या अडयाला जेल की दीवारें नहीं टूट सकती? तो हमने कहा कि अडयाला जेल की दीवारें ज़रूर टूट सकती हैं। हम सिर्फ आइन और कानून की पासदारी करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे गैर कानूनी काम करें। नाज़रीन इकराम, ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की तजारती मुतबादिल मार्केट के तौर पर ईरान जगह लेने को तैयार।
जी हाँ नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारती बंदिशों के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो नई तजारती मंडियां तलाश करने निकल पड़ा है। और इस सिलसिले के लिए सबसे पहले जो मुल्क अफगानिस्तान को ये सहूलत प्रोवाइड करने जा रहा है वो कोई और नहीं, वो ईरान है। ईरान ने नाज़रीन इकराम अपने चाबहार पोर्ट के दरवाजे अफगानिस्तान के लिए खोल दिए और उनको कहा कि उनको हर किस्म की इमारत दी जाएंगी और उनको जो है वो टैरिफ में भी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। बशर्तिया ये कि वो फौरी तौर पर हमारे चाबहार का इस्तेमाल करते हुए तजारती सरगर्मियां हैं वो शुरू कर दें। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों अफगानिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान की जानब से बार बार तजारती बंदिशों के बाद अब अफगानिस्तान के ताजिर जो है वो नई तजारती मंडियां जो है वो तलाश करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद नाज़रीन इकराम अफगानिस्तान की जानब से नई तजारती मंडियों के तौर पर पहले ईरान की जानब देखा जा रहा है और ईरान ने आगे से हरी झंडी भी दिखा दी है और ईरान ने उनको ऑफर दी है कि वो उनकी चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पे अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान जो है वो चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करके वो अशिया जो पाकिस्तान से लेता था या कराची से लेता था, क्या वो उसी टाइम पे उसको वहां पहुंच सकती है? तो तमाम चीजों का इस वीडियो में जायजा लेते हैं। नाज़रीन, ये बात आप ज़हन में रखें कि जो अफगानिस्तान है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसकी वजह से उसका कुछ समुंदर नहीं है और उस समुद्री तिजारत के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर ताहाल जो है वो डिपेंड करता रहा है। और आज के दिन भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रांजिट मादा है वो मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का कराची पोर्ट इस्तेमाल करते हुए जो अशिया है वो अफगानिस्तान मंगवाता था। लेकिन नाज़रीन इकराम, ईरान जो है उसने बीच में एंट्री दे मारी है क्योंकि ईरान इसी ताक में बैठा हुआ था किसी तरीके से जो है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की मार्केट को छोड़े और हम उसके ऊपर ऑक्यूपाई करें। तो नाज़रीन इकराम, ये बात आप ज़हन में रखें कि ईरान ने जो है बड़ी जो सहूलियात हैं वो अफगानिस्तान को ऑफर कर दी है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आप एक और बात ज़हन में रखें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का 8वां बड़ा तजारती थी, बहुत बड़ी तजारती मंडी थी पाकिस्तान के लिए और तकरीबन $1.5 अरब की पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करता था। आप नजर लगा लें कि अगर ईरान जो है इस $1.5 अरब की एक्सपोर्ट के ऊपर ऑक्यूपाई होता है, इसके बाद पाकिस्तान जो ऑलरेडी बरामदात को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है उसके लिए ये कितना बड़ा दचका साबित होगा। वही नाज़रीन इकराम, आप एक और बात ज़हन में रखें, अफगानिस्तान को जवाब दिया गया है, पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई हमें $1.5 अरब की तिजारत नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क का लोगों का जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि आल तो हम अफगानिस्तान के साथ $1.5 अरब की एक्सपोर्ट करते थे, ज़र मुबादला कमाते थे, लेकिन $1.5 अरब से ज़ायद की यहाँ पे दहशत गर्दी से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही थी, पाकिस्तान से जो है वो आटा, सीमेंट और दीगर कई अशिया जो है वो यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान से डॉलर जो है वो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये बात तो दुरुस्त है कि इंटरनेशनल जीरा है जी ब्लूमबर्ग, उसके जानब से भी ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होते थे वही अफगानिस्तान की इकोनॉमी को जिंदा रखे हुए थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानब से कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें अब बंद होगी तो क्योंकि यहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग और दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान को जो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन नाज़रीन इकराम, हक़ाइक़ की बुनियाद पर हम जायजा लें तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम ईरान ने बीच में एंट्री दे मारी है और यहाँ पे अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान की पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता रहा है और जो ईरान है उसकी जो चाबहार पोर्ट है वो कराची के मुकाबले में काफी दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ेगा अफगानिस्तान के ताजरों को और वो अशिया जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंच जाती थी 3 दिन में, अब वहां से उनको काफी टाइम लगा करेगा। और ऐसी सूरत में अगर वो चाबहार से अशिया मंगवाता है, फॉर एग्जांपल सब्जियां मंगवाता है या फल फ्रूट मंगवाता है, तो उनका रास्ते में ही खराब होने का अंदेशा जो है वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ साथ वो तमाम अशिया जो पाकिस्तान से उसको सस्ते दामों पहुंच जाती थी अफगानिस्तान की मार्केट तक, अगर वो चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करता है तो उससे उनकी लागत भी बढ़ेगी और उनका टाइम भी बढ़ेगा और अशिया जो है वो खराब होने का भी अंदेशा है। तो लिहाजा नाज़रीन इकराम, ये बात आप ज़हन में रखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बंद होना दोनों ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो ताजर हैं वो अफगानिस्तान के साथ होने वाली तजारत के ऊपर काफी हद तक जो है डिपेंडेबल है। इसी तरह अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जो सरहदी एरिया वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका भी जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान के साथ जो तजारती मामला था उसके ऊपर उनका काफी ज्यादा अमल दखल है, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में नाज़रीन कराम, ये दोनों मालिक जो है इससे सफर करने वाले हैं। मैं इनको दोनों मालिक को यही मशवरा दूंगा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर अमल करे, टीटीपी को स्पॉन्सर करना बंद करे और उनको अपने मुल्क में जगह देना बंद करे और पाकिस्तान जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद करे। तो इस तरह से एक नया रास्ता खुल सकता है और अफगानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन को हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनने से रोके। उसके बाद मुमकिन है कि दोनों मालिक दफा फिर से नए जो है किसी अमन मादे की जानिब बढ़ सके। अदरवाइज दोनों मालिक नहज पर पहुंच चुके हैं, अमन मादे की तरफ नहीं बढ़ेंगे बल्कि मजीद दुश्मनी की जानिब
जाएंगे। पाकिस्तान के जन्म से अफगानिस्तान के इलाके में बफर जोन कायम करने का जो फैसला है वो जलती के ऊपर आग लगाएगा और ऐसी सूरत हाल में बहुत बड़ा नाज़रीन किराम नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ रहने वाले आम लोगों का।